Good afternoon, students. Last lecture, you have learned about the meaning of shares, sources of capital, and features of equity shares. Features of shares. In this lecture, we are going to see kinds of shares. In kinds of shares, there are two types of shares: equity shares and preference shares. So, a company can issue different types of shares depending upon right to control, income and risks. So the following chart shows different kinds of shares. Okay, so kinds of shares are given in Companies Act 2013 as per section 43. Okay, so first is equity shares. In equity shares, there are two types of shares: equity shares with voting right, equity shares with differential voting rights. And in preference shares, there are different types of preference shares: cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, participating preference shares, non-participating preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares, redeemable preference shares, irredeemable preference shares. So now we will see first equity shares. So we will see the meaning of equity shares. So equity shares are also known as ordinary shares. Companies Act define equity shares as those shares which are not preference shares. Okay, equity shares, it is an ordinary shares, which means it is a permanent shares. Okay, those persons who invest in equity shares, that person is called as equity shareholder, and equity shareholder are permanent shareholder of the company. So that is why equity shares are known as ordinary shares. And Company Act define equity shares are those shares which are not preference shares, because preference share is a other part of shares and equity shares are separate from preference shares. So they both are the separate. Okay, so equity shares are not a preference shares. सो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था सोर्सेस ऑफ कैपिटल, जिसमें हमने शेयर्स का मीनिंग देखा था और फीचर्स ऑफ शेयर्स देखा था. तो आज हम इस लेक्चर में काइंड्स ऑफ शेयर्स देखेंगे. तो काइंड्स ऑफ शेयर्स में टू टाइप्स के शेयर्स होते हैं: इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, इक्विटी शेयर्स में टू टाइप्स होते हैं, जिसमें इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स है, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल्स वोटिंग राइट है. इक्विटी शेयर्स के अलावा जो दूसरा पार्ट है वो प्रेफरेंस शेयर्स है. प्रेफरेंस शेयर्स में जो है डिफरेंट टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स है. तो फर्स्ट हम इक्विटी शेयर्स के बारे में देखेंगे कि इक्विटी शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होता है. तो यहाँ पे बताया गया है कि इक्विटी शेयर जो है ऑर्डिनरी शेयर्स है. ओके, और कंपनीज एक्ट ने इसको डिफाइन किया है कि इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं. ओके, बिकॉज इक्विटी शेयर्स जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स से सेपरेट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर से अलग होते हैं. ओके, तो इस डेफिनेशन से हमको ये पता चलता है कि इक्विटी शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरह डिविडेंड को बेयर नहीं कर सकते. ओके, और इक्विटी शेयर जो है ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं. ओके, और वो प्रेफरेंस शेयर से सेपरेट होते हैं. सो द अबव डेफिनेशंस रिवील दैट द इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय preference for dividend. The equity shares do not have a priority for repayment of capital at the time of winding up of the company. Okay, so इस मीनिंग से हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि इक्विटी शेयर्स जो है प्रेफरेंस शेयर की तरह डिविडेंड को एंजॉय नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले प्रेफरेंस हम किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. ओके, बिकॉज इन कंपनी इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स. One is equity shares and other is preference shares. Okay, if suppose both the shareholder invest in in company, so company will give dividend to preference shareholder but not give to equity shareholder. Why? Because preference shareholder are not for permanent purpose. Okay, they are for temporary purpose, but equity shareholder are for permanent. Okay, and they will get their dividend at the time of winding up of the company. Okay, but if suppose company wind up at the end of the time, if suppose company wind up, the company will give dividend first for preference share. After that they will give dividend to equity shareholders. Okay, सो ये डेफिनेशन से हमको ये पता चलता है कि इक्विटी शेयर जो है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरह एंजॉय नहीं कर सकते हैं. ओके, मतलब
पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देंगे, बाद में हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। ओके, और जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी बंद होती है, तो उस टाइम पे कैपिटल का जो रीपेमेंट है पहले हम किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर उसके बाद हम किसको देंगे, इक्विटी शेयर्स को। ओके, सो इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स ओन द कंपनी एंड बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। ओके, इक्विटी शेयर जो है ना, ये फंडामेंटल सोर्स होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए। ओके, और जो पर्सन इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर्सन को हम इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, बरोबर। तो जो पर्सन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो कंपनी का ओनर बन जाता है। क्या बन जाता है, वो कंपनी का ओनर बन जाता है। और जो भी कंपनी का रिस्क रहेगा, कंपनी से रिलेटेड जो भी रिस्क एसोसिएटेड रहेगा, तो उसको बेयर कौन करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, और ये जो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर होते हैं, बिकॉज ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है ये परमानेंट रहते हैं कंपनी के अंदर। तो इसीलिए इनका जो रीपेमेंट होता है कैपिटल का एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होती है उसी टाइम पे ही हम इनको क्या करते हैं, इनका पैसा वापस कर देते हैं। ओके, तो आपने सुना रहेगा, जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है ये क्या होते हैं, रिस्की होते हैं। क्या होते हैं, रिस्की होते हैं, बराबर, एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आफ्टर पेइंग क्लेम ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स, द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। Thus, equity shareholders are residual claimants of the income and assets. इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अलावा जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि डिबेंचर होल्डर हो गए, ओके, पब्लिक डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड, ओके, तो इनका पेमेंट होने के बाद जो फंड रिमेनिंग रहेगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो भी इन्वेस्टर्स है कंपनी में, जैसे पब्लिक डिपॉजिट होल्डर हो गए, फिर गवर्नमेंट बॉन्ड होल्डर हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए। ओके, तो इनको पेमेंट देने के बाद जो फंड बचेगा वो फंड किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रेसिडुअल क्लेमेंट्स भी बोला जाता है इनकम एंड एसेट्स का। रेसिडुअल क्लेमेंट्स मतलब क्या हुआ कि जब सबका पेमेंट हो जाएगा तो लास्ट में क्लेम करने वाले पर्सन कौन होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर होंगे। ओके, और इनको लास्ट क्लेमेंट्स भी बोला जाता है क्योंकि सबसे लास्ट में ये क्लेम करते हैं कि हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, हमने जो एसेट लगाया है कंपनी के अंदर वो हमको वापस चाहिए। ओके, सो द इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, फिक्स कमिटमेंट मीन्स व्हाट, कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो है दे विल नॉट गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो है ना फिक्स रेट पे जो है डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिपेंड करेगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। अगर प्रॉफिट हाई होगा तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर प्रॉफिट लो रहेगा तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कमिटमेंट जो है वो फिक्स नहीं रहेगा। ओके, दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको जो डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन के बाद ही किया जाता है। रेट जो फिक्स करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिक्स करते हैं। ओके, इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल। सिमिलरली इफ देयर इज लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड। ओके, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। ओके, अगर कम प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड भी कम मिलेगा। Thus the fortune of equity shareholder is tie up with the ups and down of the company. ओके, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का जो रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा या जो उनको अमाउंट मिलेगा तो कंपनी के अप्स एंड डाउन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, मार्केट में क्या बूम है, मार्केट में रिसेशन है या इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला जाता है, रिस्की इक्विटी शेयर होल्डर बोला जाता है। ओके, if the company is successful they enjoy great financial rewards, and if the company fails the risks fall mainly on them. It is exactly because of this position equity share capital is known as venture capital or risk capital. The owner of equity shares are real risk bearer. Okay, as I told you earlier that equity shareholder are the more risky shareholder as compared to preference shareholder. Okay, if suppose company is successful then equity shareholder enjoy great financial rewards. Okay, if company fails the equity shareholder risks will be more. Okay,
सो इक्विटी शेयर होल्डर इज एल्सो नोन एज वेंचर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला जाता है? वेंचर कैपिटल बोला जाता है। वेंचर कैपिटल मतलब रिस्क कैपिटल, मतलब वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। मतलब अगर जो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो कैपिटल लगा रहे हैं कंपनी में, बराबर। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर जो कैपिटल लगा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या रहता है? रिस्क ज़्यादा रहता है। रिस्क ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि उनका जो रिटर्न है वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इसीलिए इनको जो है रिस्क कैपिटल कहा जाता है। द ओनर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर रियल रिस्क बेयरर्स। ओके, तो जो इक्विटी शेयर्स के ओनर होते हैं वो रियल रिस्क बेयरर होते हैं। हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर जो है कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो। ओके, क्यों करते हैं? क्योंकि वो परमानेंट ओनर होते हैं कंपनी के, रियल ओनर होते हैं। ओके, दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग्स। वो जो है जनरल मीटिंग्स को भी अटेंड करते हैं, उनको इन्विटेशन दिया जाता है। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस एट द जनरल मीटिंग। तो जो कंपनी के मैटर्स होते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए जनरल मीटिंग में आते हैं और वहाँ पे वो वोटिंग भी करते हैं। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू मैनेज द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर आर दस रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, तो वो जो जनरल मीटिंग में आते हैं वो किस लिए आते हैं? वोटिंग करने के लिए आते हैं, बराबर। तो वोटिंग किस लिए करते हो? ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में लेके आ सके। ओके, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो सिर्फ क्या करते हैं? कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कंपनी में कैपिटल लगाते हैं, बराबर, और मीटिंग अटेंड करते हैं। बट वो पूरी तरह से जो है कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ओके, तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंपनी के लिए वर्क करते हैं। ओके, तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोला जाता है? रियल ओनर बोला जाता है। ओके, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो फर्स्ट इज परमानेंट कैपिटल। ओके, as already we discussed about the equity shares are permanent capital. Okay, so equity shares are irredeemable shares. The amount received from equity share is not refundable by the company during its lifetime. Equity shares become refundable only in the event of winding up of the company or company decide to buy back shares. Thus equity share capital is long term and permanent capital of the company. परमानेंट कैपिटल मीन्स वॉट? इक्विटी शेयर होल्डर जो है ये इरिडीमेबल शेयर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट है वो हम एट द एंड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? इक्विटी शेयर्स का पेमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इनको परमानेंट बोला जाता है। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। ओके, बिकॉज हम लोग इनको ड्यूरिंग द ईयर या फिर विद इन 5 years या 10 years में हम इनको रीपेमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए हम इनको क्या करते हैं? जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है उसी टाइम पे हम इनको क्या करते हैं? रीपेमेंट कर देते हैं। और जो उनको रिटर्न मिलेगा वो प्रॉफिट के हिसाब से उनको रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन जो इंटायर अमाउंट जो रीपेमेंट करना रहेगा वो हम कब कर सकते हैं? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पे कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए उनका अमाउंट जो है वो रिफंडेबल नहीं होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ओके, सो फिर कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी के हाथ में भी रहता है कि वो कब बायबैक कर सकती है शेयर्स को, कब वो रिटर्न कर सकती है शेयर्स को। ओके, तो इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो ये लॉन्ग टर्म शेयर कैपिटल होता है और ये परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी का। तो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। If company earns more profit, dividend is paid at higher rate. On the other hand, if there is insufficient profit or loss, board of directors may postpone the payment of dividend. Equity shareholders cannot compel them to declare and pay dividend. The income of equity share is uncertain and irregular. The equity shares get dividend at fluctuating rate. इक्विटी शेयर्स को जो है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, उनको जो है फ्लक्चुएटिंग रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। ओके, और जो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंपनी के अर्निंग के ऊपर।
कंपनी को अगर अर्न ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो डिविडेंड का भी रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अगर कंपनी का अर्निंग जो है वो कम होगा तो डिविडेंड का रेट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ओके, उसके अलावा अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट या लॉस नहीं है तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है जो हम डिविडेंड का पेमेंट करने वाले हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसको क्या कर सकते हैं, वो डेट को पोस्टपोन कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो कि 20 दिसंबर को हमको पेमेंट करना है डिविडेंड का, ओके, तो अभी मान लो कि इनसफिशिएंट फंड हमारे पास है, मतलब फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट मंथ में भी पेमेंट कर सकते हैं, मतलब उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। सो इक्विटी शेयर्स यहाँ पे कंपेल नहीं कर सकते, ओके, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा वैसे उनको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का जो इनकम है वो क्या है, अनसर्टेन है, इरेगुलर है। ओके, मतलब रेगुलर नहीं है और वो फिक्स नहीं है। जैसे मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे उनको रेट ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, तो उनको जो डिविडेंड जो मिलेगा वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलेगा। किस पे मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग रेट पे। सो थर्ड पॉइंट इज इक्विटी शेयर्स इंजॉय सर्टेन राइट्स। ओके, तो अभी थर्ड पॉइंट में राइट्स के बारे में बताएं, उनके राइट्स क्या क्या है। सो फर्स्ट इज राइट टू वोट, सेकेंड राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, थर्ड राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, फोर्थ राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। सो राइट टू वोट, it is the basic right of equity shareholders through which they elect directors, alter memorandum and articles of association etc. यहाँ पे पहला राइट क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है कंपनी में वोट कर सकते हैं, ये उनका बेसिक राइट बनता है। ओके, और उस वोटिंग में वो क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, डायरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे एमएलए और एमपी का इलेक्शन होता है, बरोबर। एमएलए मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो एमएलए क्या होते हैं, हमारे आमदार होते हैं, और एमपी क्या होते हैं, खासदार होते हैं, बरोबर। तो ये एमएलए और एमपी को हम इलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्या होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं, वो हमारे राइट के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं। हमारे जो वादे रहते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती है, जो हमारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसका वो सोल्यूशन निकालते हैं, बराबर। तो हमारी तरफ से वो काम करते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने क्या करते हैं, पब्लिक का जो ओपिनियन है, पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स है, पब्लिक के जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, असेंबली में जो है आवाज़ उठाते हैं पब्लिक के तरफ से। ओके, असेंबली हो गया, फिर आपका पार्लियामेंट हो गया, तो वहाँ पे क्या करते हैं, लोग अपनी बात रखते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। ओके, तो मतलब पब्लिक के लिए वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं, वो पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो वैसे यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए काम कौन करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे, बराबर। तो डायरेक्टर्स आएंगे कैसे कंपनी में, तो उसके लिए जनरल मीटिंग होगी। जनरल मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, वोट करके क्या करेंगे, वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे। समझ में आया। फिर ऑल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो कंपनी के अंदर जो है ना दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो जब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसके पहले क्या होता है, आपका प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के अंदर। प्रोमोटर्स क्या करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, बराबर। तो जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो कंपनी को क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर बाद में कंपनी को क्या मिलता है, कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है, बराबर। तो जब कंपनी पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी जब कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट अचीव कर पाती है, तो उसके बाद कंपनी को दो डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताता है कंपनी का। ओके, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस किस में दिया जाता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि हमारा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हमारी कंट्री को चलाते हैं, बराबर। तो वैसे ही कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर का यहाँ पे राइट बनता है कि वो क्या कर सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या कर सकते हैं, वो चेंजेस लेके आ सकते हैं। ओके, तो ये उनका राइट है। सेकेंड पॉइंट है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे हैव अ राइट टू शेयर इन प्रॉफिट when distributed as dividend. If the company is successful and makes handsome profit, they have advantage of getting large dividend. Okay, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट बनता है किसमें, सॉरी शेयर्स बनता है किसमें, प्रॉफिट में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट राइट्स है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ओके, जब कंपनी का प्रॉफिट
हैंडसम रहेगा, हैंडसम मतलब लार्ज रहेगा प्रॉफिट बूम रहेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिलने का चांसेस रहेगा। ओके, डिविडेंड क्या है उनका, प्रॉफिट ही है एक तरह से। ओके, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है कि वो प्रॉफिट में अपना शेयर ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ देयर कंपनी। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ पे राइट बनता है कि वो क्या कर सकते हैं, कंपनी का स्टैट्यूटरी बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब क्या होता है, लीगल बुक्स। ओके, जो कंपनी ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है रजिस्ट्रार के यहाँ पे, तो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक कौन कर सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर। उसके अंदर आपका ये भी आता है, जैसे कि आपका ऑडिट हो गया। ओके, तो आपने जो ऑडिट करवाया है तो उस ऑडिट को भी चेक कर सकते हैं, अपना कंपनी का अकाउंट चेक कर सकते हैं, कंपनी के फाइलिंग जो होती है डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये इनका राइट है, किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। एंड डी इज राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स इंजॉय द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ पे राइट बनता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, मतलब क्या हुआ कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब जो उनका ओनरशिप है वो दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये 4 राइट हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्रेफरेंशियल राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट enjoy preferential right in respect of payment of dividend. They are paid dividend only after dividend on preference shares has been paid. इक्विटी, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। इक्विटी शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरह एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उसके पेमेंट होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट दे सकते हैं। ओके, तो ये है नो प्रेफरेंशियल राइट। द लास्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोलिंग पावर। ओके, कंट्रोलिंग पावर, द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, सो कंपनी का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में रहता है। दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। इट इज बिकॉज दे एंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स। The Act provides the right to cast vote in proportion to shareholding. They can exercise their voting rights by proxies without even attending meeting in persons. Okay? तो अभी यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को जो है ना कंट्रोलिंग पावर भी दिया गया है, बिकॉज वो जो है कंपनी के रियल मास्टर्स होते हैं। रियल मास्टर मतलब रियल ओनर होते हैं वो कंपनी के। ओके, तो उनको यहाँ पे पूरा वोटिंग राइट्स दिया गया है, उनको पूरा राइट है वोटिंग करने का। ओके, तो एक्ट ने यहाँ पे बताया कि वो वोट कर सकते हैं शेयर, जैसे उन्होंने जो शेयर इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, शेयर्स को परचेस किया है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वोट कर सकते हैं। ओके, और उनको ये राइट दिया गया कि वोटिंग राइट्स में वो अपना प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। प्रॉक्सी मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मान लो कि पर्टिकुलर इक्विटी शेयर होल्डर वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे वो मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आ सकता है, तो वो क्या कर सकता है, कंपनी में प्रॉक्सी लगा सकता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन आएगा और वो मीटिंग अटेंड करके चले जाएगा। ओके, तो ये भी राइट दिया गया है इक्विटी शेयर होल्डर को, वो प्रॉक्सी कर सकते हैं कंपनी के अंदर। By exercising voting rights, they can participate in the management, okay, and affairs of the company. They elect their representatives called directors for management of the company. They are allowed to vote on all matters discussed at the general meetings. Thus, equity shareholders enjoy control over the company. Okay, तो वो जो है कंपनी के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो किसको इलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं। ओके, और उनके पास ये राइट है कि कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें वो क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और उनके पास क्या रहता है, कंट्रोल रहता है कंपनी को मैनेज करने के लिए। 6 पॉइंट इज रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर्स बेयर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। दे आर डिस्क्राइब एज शॉक एब्जॉर्बर्स व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिस्क को बेयर करते हैं। ओके, उनको शॉक एब्जॉर्बर भी बोला जाता है, मतलब जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, जैसे रिसेशन आ जाता है
मार्केट में। ओके, जब मार्केट डाउन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, अचानक से क्या होता है कि इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ जाता है और उससे क्या होता है कि कंपनी के ऊपर भी असर पड़ता है और कंपनी का प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, अचानक से लो हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी को लॉस होने का चांसेस रहता है, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, शॉक एब्जॉर्बर बोला जाता है। ओके, सो इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स, द रेट ऑफ डिविडेंड आल्सो कम्स डाउन, ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम्स डाउन, resulting into capital loss. Thus equity shareholders are main risk takers. ओके, इनकम अगर फॉल होता है कंपनी का तो रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या हो जाएगा, कम्स डाउन, वो भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या होता है कि कंपनी का जो है रिजल्ट क्या होता है कि कंपनी कैपिटल लॉस में चला जाता है। तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला जाता है, रिस्क टेकर बोला जाता है, क्योंकि वो रिस्क को बेयर करते हैं। 7 point is residual claimant. Equity shareholder as owners are residual claimants to all earnings after expenses, taxes, etc. are paid. Residual claims means the last claim on the earning of company. इक्विटी शेयरहोल्डर जो है कंपनी के रियल ओनर होते हैं, बराबर। उनका जो पेमेंट हम कब करते हैं, आफ्टर एक्सपेंसेस, जो भी कंपनी का एक्सपेंसेस है, जैसे कि हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमने लर्न किया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे हमने एक्सपेंसेस देखे थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो वो एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद, टैक्सेस का पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा तो वो अमाउंट किसके अंडर में जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के, इसीलिए उनको लास्ट क्लेमेंट भी बोला जाता है। ओके, and the equity shareholder come last, they have advantage of receiving entire earning that is left over. Okay, तो इक्विटी शेयरहोल्डर जो है ना लास्ट में आते हैं। ओके, और उनको जो है जो उनका अर्निंग जो मिलेगा वो लास्ट में ही मिलेगा। ओके, सबसे लास्ट क्लेमेंट कौन होते हैं, इक्विटी शेयरहोल्डर। ओके, 8 point is no charge on assets. The equity shares do not create any charge over assets of the company. अभी आपके माइंड में चलता रहेगा कि ये सर नो चार्ज ऑन एसेट्स मीन्स क्या होता है। नो चार्ज ऑन एसेट्स मीन्स ये होता है कि मीन्स एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स इन केस कंपनी फेल्स टू पे द डेट, क्रेडिटर्स कैन क्लेम इट फ्रॉम द कंपनीज एसेट्स। चार्ज ऑन एसेट्स मतलब क्या होता है कि कंपनी जो सप्लायर रहते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी को रॉ मटेरियल देते हैं, बराबर। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो सप्लायर होते हैं वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं। वो क्या बोलते हैं कंपनी को कि अगर आपने हमारा पैसा वापस नहीं करवाया तो हम क्या करेंगे, आपके एसेट्स को खरीद लेंगे, आपके एसेट्स को हमको देना पड़ेगा अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो उनको। ओके, तो उस टाइम पे एग्रीमेंट होता है, तो लोग क्या करते हैं कि अगर मतलब एक कंडीशन होती है कि अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, आपके एसेट्स पे चार्ज करेंगे, आपका एसेट्स आप जो अमाउंट हमारा बनता है उस हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, आपके कंपनी का एसेट्स हमको पे करना पड़ेगा। इफ़ कंपनी फेल्स टू पे डेट, अगर कंपनी फेल होती है पैसा देने में तो क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। क्रेडिटर्स कैन क्लेम, कंपनी से क्लेम कर सकते हैं कि हमको एसेट्स दे दो। क्रेडिटर्स कैन क्लेम इट फ्रॉम द कंपनीज एसेट्स, तो कंपनी के एसेट्स से वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं चार्ज ऑन एसेट्स। ओके, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को राइट नहीं बनता है कि वो एसेट्स के ऊपर चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो है लास्ट क्लेमेंट होते हैं, इनका जो राइट जो है ना लास्ट में बनता है, तो इनके ऊपर कोई राइट नहीं है एसेट्स के ऊपर चार्ज करने के लिए। ओके, 9 point is bonus issue. Okay, so bonus shares are issued as gift to equity shareholders. बोनस जो है वो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। ओके, दिस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स। ओके, अब ये जो बोनस शेयर जो है ये किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स को। एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बोनस शेयर्स दिया जाता है। और ये जो शेयर्स है दीज आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये जो शेयर्स जो है हम कैसे इशू करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट कंपनी ने एक्यूमुलेट करके रखा है, कंपनी ने जो प्रॉफिट को एवरी ईयर जमा करके रखा है उसमें से हम क्या करते हैं, बोनस इशू करते हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड, thus capital investment of ordinary equity shareholders tends to grow on its own. This benefit is available only to the equity shareholders. Okay, अब ये जो बेनिफिट है हम किसको देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देते हैं, बराबर। उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको बोनस शेयर्स देते हैं। ओके, बिकॉज जैसे जैसे ग्रोथ होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का वैसे वैसे क्या किया जाता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम बोनस
दे देते हैं उनको। ओके, तो ये सिर्फ बेनिफिट किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को है। 10 पॉइंट इज राइट इशू। When a company needs more fund for expansion purpose and raises further capital by issue of shares, the existing equity shares may be given priority to get newly offered shares. Okay, मतलब जब कंपनी डिसाइड करती है कि उनको फंड्स ज़्यादा लेके आना है कंपनी के अंदर, कंपनी को एक्सपांड करना है, ओके, और कैपिटल को बढ़ाना है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करेगी, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको पहले प्रायोरिटी देगी कि आप जो है आओ और हमारे कंपनी का शेयर्स परचेस कर दो। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, राइट इशू। दिस इज कॉल्ड राइट इशू। द शेयर्स आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डिंग। ओके, जैसा उन्होंने शेयर होल्डिंग किया था, जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको राइट इशू देंगे। ओके, 11 पॉइंट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो। इट कैन बी जनरली ₹10 पर शेयर और इवन ₹1 पर शेयर्स। और ये आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में आता है ये ऑब्जेक्टिव्स में। इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना होता है, ₹10 पर शेयर्स और ₹1 पर शेयर्स। ओके, तो अभी लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए। अब ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो 12 पॉइंट है हमारा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ these shares. The demand and supply of equity shares depends on profit earned and dividend declared. When a company earns huge profit, market value of its shares increases. On the other hand, when it incurs loss, the market value of its shares decreases. There are frequent fluctuations in the market value of equity shares in comparison to other securities. Therefore, equity shares are more appealing to the speculators. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब क्या हुई कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहेगा, सप्लाई ज़्यादा रहेगा, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर्स जो रहता है, मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई जो होता है इक्विटी शेयर्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट अर्न या फिर डिविडेंड डिक्लेयर के ऊपर। ओके, सो व्हेन अ कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स इंक्रीजेस। कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कंपनी का लॉस हो जाता है तो मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए इक्विटी शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू होता है क्या होता है, वो फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट होते रहता है। ओके, लास्ट पॉइंट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। Share capital appreciation take place when market value of share increases in the share market. Profitability and prosperity of the company enhance reputation of company in the share market. It facilitates appreciation of market value of equity shares. शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन कभी होता है जब मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है शेयर मार्केट में। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का जो कैपिटल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बरोबर। सो प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी इनहेंस रेपुटेशन ऑफ कंपनी। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का क्या होगा, मार्केट में रेपुटेशन होगा। ओके, उसके साथ साथ शेयर मार्केट में भी क्या होगा, उनका रेपुटेशन बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि इक्विटी शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है वो क्या होगा, मार्केट में, शेयर मार्केट में अप्रिशिएट होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर होल्डर है वो क्या करेंगे, कंपनी का जो शेयर्स है उसको परचेस करेंगे। ओके, सो ये था आपका इक्विटी शेयर्स, जिसमें हमने डिस्कस किए फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस types of equity shares and types of preference shares. Thank you.